ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हमने एक नया टॉपिक डिस्कस करना है और लेट मी स्टार्ट विद माय प्रेजेंटेशन। ओके जी, विजिबल है स्क्रीन मेरी? यस सर। ओके गुड। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप्स शिप बिटवीन क्वालिटेटिव और categorical variable। आप सब ने न्यूमेरिक वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स कैलकुलेट कर भी ली हैं, उनको आपको पता भी है वो कैसे कैलकुलेट होती हैं। उसमें हमने लीनियर भी देखी है, हमने इसके अलावा जो है बाकी भी रिलेशनशिप्स जो है वो कैलकुलेट, एक्सपोनेंशियल भी कैलकुलेट किए हैं, लॉजिस्टिक भी कैलकुलेट किए हैं। वो होपफुली आप सबको याद होगा, रिसेंटली आपकी एग्जाम्स जो हैं, तो यू यू डेफिनेटली रिमेंबर ऑल दैट। ठीक है, सो क्वेश्चन इज कि क्या हम कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए भी एग्जैक्टली सेम चीज कर सकते हैं? कैन वी कैलकुलेट दी लेट्स से relationship between the gender of a class and the grade or the CGPA they get? Is there any kind of a relation between them? Of course, both of them are categorical variable in this case, right? So gender is also a categorical variable, either male or female, and similarly the grade is also A, B, C, D, and so on and so forth. So in that case, again, it is a categorical variable. So is there any kind of a relation between them? The problem is we cannot use the very same strategy which we used before. That means using the linear relationship, scatter plot and so on and so forth. Scatter plot आप क्या इसके उस केस में जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये चीज सबको क्लियर होगी। सो क्वेश्चन ये है कि फिर इसको हम इस केस में कैसे करें? हाउ वी कैन डू दैट, हाउ वी कैन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल? दिस इज द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे and hopefully maybe in the next lecture as well. Okay, so what we want to do is we want to examine two categorical variables at the same time. Okay, so at the same time important है क्योंकि आप individually you can individually examine any categorical variable. For example, you can look at gender and you can very easily say that okay, male, female, and let's say 20 were male and let's say 10 were female. So in this case you can talk about individual variables. Similarly for the grades, you can talk about different grades, for example A, B, C, and so on, and you can calculate, let's say maybe 2, 10, 15, and so on. So you can individually look at the grades, and you can also talk about the portion of it. For example, in this case 20 by 30 will be the portion or the percentage of male in male values in this categorical variable gender. Similarly, 10 divided by 30 will be the percentage of the female students in a class. Similarly, you can do the very same thing over here in A, B, C, and so on. So today we are going to discuss how we can look at these two variables together at the same time and try to find out if there is any kind of any relationship occurs between these two categorical variables. This is the main aim of today's lecture. Hopefully मेरा ख्याल है जो जो कॉन्सेप्ट है जो हमने आज डिस्कस करना वो सबको क्लियर हो गया। ठीक है,
जी, यस नो? Yes. ओके, अब बीच में यार कमेंट करते रहिएगा, मैं यस सर। जी, ताकि मैं जो हूँ चल सकूँ आगे और मुझे पता हो कि आप लोगों को और चीज़ें समझ आ रही हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द सिंपल। इसको समझने के लिए लेट्स टॉक अबाउट अ सिंपल एग्जांपल। इसको सारे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है? वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स यूजिंग एन एग्जांपल। और एग्जाम्पल जो है वो आप सबको याद होगा, टाइटैनिक शिप, और उससे रिलेटेड डिजास्टर सबको याद होगा, ठीक है? और उसमें आप सबको याद होगा कि देर आर डिफरेंट क्लासेस, ए क्लास या सुपर क्लास कह लो, या फिर आपके पास कह सकते हो एलीट क्लास, देन क्रूज था, देन सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फर्स्ट क्लास मेंबर्स में अब थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, अगर आपकी शिप है तो फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स वर एट द टॉप, देन सेकंड क्लास, maybe then third class, and lastly there was a crew, ठीक है? crew, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास। होपफुली सबको समझ आ गई, ठीक है ना? तो फर्स्ट क्लास मेंबर्स वर एट द टॉप and crew were at the bottom, ठीक है? And you already know what happened to this ship. So in this case, this ship hit the iceberg and everybody drowned, and not everybody, some of them survived, of course. We have to talk about it. So question which we want to know is there any relationship between the class of a passenger and their survival? If there is between the class of class of a passenger and his survival, or you can say if is there a relationship between the class of a passenger and if they survive the Titanic disaster? These are one of the same thing, ठीक है? सो ये हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर करना है। सो क्वेश्चन ये है कि इसको सामने रखते हुए हाउ वी कैन डू दैट, कैसे हम ये कैलकुलेट करेंगे और क्या चीजें हम लोगों को चाहिए होंगी टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है? सो सबसे पहले एक चीज याद रखनी कि बोथ इन बोथ द केसेस जो हैं वो आपके पास कैटेगोरिकल है। कौन कौन से? इस केस में आपके पास क्लास ऑफ अ पैसेंजर एंड सर्वाइवल या सर्वाइव्ड, जिसको आप कह सकते हैं सर्वाइव्ड और नॉट, ठीक है? क्वेश्चन जो है, सो इस केस में लेट्स टॉक अबाउट, मैं आपको इसमें जो क्लास है उससे रिलेटेड आपको जो एक टेबल है वो आपको पहले से दे देता हूं। दिस टेबल इज दैट क्लास, सॉरी एक सेकंड, इसमें जो क्लास के आपके मेंबर्स थे वो कितने थे और इसमें सर्वाइवल के कितने थे? लेट मी गिव यू दैट, ठीक है? सो दैट वी कैन talk about that how we can compare these two or combine these two together, ठीक है? So सबसे पहले आपके पास जो था फर्स्ट क्लास, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास के जो मेंबर्स थे दे वर, और आपने कहेगा वैल्यू एंड काउंट, काउंट ऑफ अ क्लास जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, वो कैलकुलेट करेंगे हर क्लास की। आपको याद होगा ये हम लोगों ने किधर किया था? ये आपको याद होगा हमने बार प्लॉट जब जनरेट किया तो उसमें फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच जो कैटेगरी थी हमने उसको रिपोर्ट किया था। सेम इज द केस ओवर हियर। तो फर्स्ट क्लास के केस में हमारे पास 325 पैसेंजर्स थे, और सेकंड क्लास के केस में आपके पास 285 थे, थर्ड क्लास के केस में आपके पास 706 पैसेंजर्स थे, एंड क्रू इसके अंदर जो था लेट्स से इट वाज 885। ओके, सो दिस इज द काउंट ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी, काउंट ऑफ द क्लास मेंबर, सॉरी। सो सिमिलरली हम सर्वाइव्ड के केस में आपके पास दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, यस या नो, यानी कि सर्वाइव्ड यस हुआ था या नो हुआ था, ठीक है? सो इस केस में, सॉरी नो मैंने, ओह माय गॉड, मैं मिस्टेक,
इस केस में एग्जैक्टली वही आपने पैटर्न रखना है कि आपके पास वैल्यू और काउंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वैल्यू आपने रिपोर्ट करनी है। तो इस केस में आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि सर्वाइव्ड और इनके काउंट थे लेट्स से 711, और जो नॉट सर्वाइव्ड थे उनके नॉट सर्वाइव्ड के काउंट जो थे वो 1490। सो ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो दे टर्न आउट टू बी 2201, और अगर आप इनके काउंट को भी देखें तो दैट टर्न्स आउट टू बी 2201। सो इस केस में इसको ये सॉरी ये जो आपने जनरेट किया, दीज आर टू इंडिविजुअल वेरिएबल्स जिनको आपने इस टाइम पे जिसके काउंट्स और फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको आपने रिपोर्ट किया फॉर द टाइम पे। रिमेंबर दैट कि आपके पास ये डेटा और ये डेटा, दीज टू डेटा विच आर मतलब दो डिफरेंट वेरिएबल्स का जो डेटा होगा, दे शुड ऑलवेज बी काउंट वाइज सेम, मतलब इसका भी सेम और इसका भी सेम होना चाहिए। दीज टू काउंट शुड बी एग्जैक्टली द सेम। एंड व्हाई दैट? दिस बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर रिप्रेजेंटिंग द वेरी सेम डेटा, बट वी आर लुकिंग एट फ्रॉम टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक हो गया? only way we can have a different count uh, over here and over here, मतलब दो variables के दरमियान आप different count सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है if we have some kind of a missing data. The counts should match, they may mismatch only if we have missing data. इसका क्या मतलब है? मिसिंग डेटा से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये सिर्फ डिस्कशन के लिए कि अगर लेट से आपके पास कुछ फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स थे जिनके बारे में आपको नहीं पता वेदर दे सर्वाइव्ड और नॉट, ठीक है? सो दैट मींस कि आपके पास एक रो आएगी जिसके अंदर आपके पास लिखा होगा फर्स्ट क्लास पैसेंजर एंड स्टेटस ऑफ सर्वाइवल इज अननोन। सो इस केस में इसको हम कहेंगे मिसिंग डेटा। सो यू कैन नॉट इंक्लूड that data over here because we do not know whether that person survived or not. So because of this very reason you are calling it a missing data, और इस केस में आपके पास वो पैसेंजर तो फर्स्ट क्लास था, so that means the count let's say will be 325, बट सर्वाइवल और नॉट सर्वाइवल के अंदर से आपके पास इस एक पैसेंजर जो भी वो नंबर था उसका वो मिसिंग हो जाएगा बिकॉज वी डू नॉट नो दैट व्हाट इज द आउटकम और व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हिज सर्वाइवल। ठीक है, ये चीज सबको समझ आ गई जी? यस सर। ओके, सो इसका क्या मतलब है कि अब आपके पास ये दो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ फ्रॉम द सेम डेटा सेट आपके पास आ गए हैं, और अब हम लोगों ने क्या करना है, और अगर आपको स्कैटर प्लॉट याद हो, अब याद रखिए हम मैं इसको साथ इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि उसमें हमने क्या किया था और इसको हमने कैसे करना, और इफ देयर इज सम काइंड ऑफ a resemblance or similarity between these two approaches। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने स्कैटर प्लॉट जनरेट किया था फॉर द टू वेरिएबल्स, और उनके दरमियान जो आपके पास स्कैटर प्लॉट आ जाता था तो वो क्या होता था कि आपके पास जो स्कैटर प्लॉट के अंदर आपके पास दो वेरिएबल्स ए और बी जब होते थे तो आपके पास डिफरेंट डेटा पॉइंट्स आते थे। अगर इन डेटा पॉइंट्स की बात करें तो दीज आर एक्चुअली द इंटरसेक्शन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। यस या नो? ये बात समझ आ गई सबको? यही हो रहा होता था। तो these are the point where these two variables actually intersect। तो ये आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो होते थे हम स्कैटर प्लॉट में जनरेट करते थे। अब इस केस में भी हमें कुछ इसी किस्म का काम करना है कि वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ अप्रोच, जो कि ऑफ कोर्स वी कैन नॉट जनरेट अ स्कैटर प्लॉट ओवर हियर, बट वी कैन डू समथिंग सिमिलर टू इट ओवर हियर एज वेल। ठीक हो गया? और हाउ वी कैन डू दैट, दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस राइट नाउ। अच्छा, अब इस केस में अब हमने करना क्या है, we need to see the intersection
of two categorical variables. ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, अब इसको कैसे देखना है? इसके लिए आपको एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं कंटिंजेंसी टेबल। आज से पहले नाम सुना इसका? जी, यस, नहीं जवाब आ रहा आपका? जी सर, सुना हुआ। ओके, गुड। सो इस केस में आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन वेरिएबल will be checked against the other one। ठीक है। अब वो कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको साथ साथ डिस्कस करके बताता जाता हूं कि वो कैसे होगा। अब कंटिजेंसी टेबल जनरेट करने का जो तरीका है वो बड़ा सिंपल है। इस केस में अगर आपको याद हो, बच्चे ने दोबारा से इसको कर लेते हैं। ये हम लोगों ने वैसे काम किसी हद तक पहले किया हुआ है, अगर आपको याद हो कि हमने काउंट्स वगैरह कैलकुलेट किए थे। सो अब आपने क्या करना है कि कंटिजेंसी टेबल से एग्जैक्टली मतलब ये है कि आपके पास दो पॉसिबल, यहाँ पे आपके पास सर्वाइव्ड मैं लिख, बल्कि इसको इधर नहीं लिखता, थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। सर्वाइव्ड यस और नो, और बाकी आपके पास जो होगी वो क्लास होगी। इसको मैं क्लास कह रहा हूं, और क्लास की पॉसिबल वैल्यू आपके पास है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड लास्टली आपके पास क्रू था। सो ये आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं जो कि अवेलेबल है। अच्छा, अब आपने इसमें से कंटिजेंसी टेबल जनरेट कैसे करना है? फ्रॉम द डेटा सेट। इस केस पे आपने ये चेक करना है, वो मैं कहा कि इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। इसमें आप क्या करेंगे, आपके पास जो ये सेल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो डेटा सेट के अंदर से वो सारी एंट्रीज जिसके अंदर सर्वाइव जो है की वेरिएबल की वैल्यू यस है, एंड वी हैव पैसेंजर इज फ्रॉम द फर्स्ट क्लास। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास डेटा सेट होगा और उसके अंदर वो सारी रोज जिसके अंदर आपके पास सर्वाइव यस लिखा हुआ होगा और क्लास इज फर्स्ट क्लास, वो आपने काउंट कर लेनी और उनका काउंट जो होगा वो आप इधर रिपोर्ट करोगे। ठीक है। और सिमिलरली ये वो होगा जिसके अंदर आपके फर्स्ट क्लास होगी और उनका सर्वाइवल जो होगा वो नो होगा, यानी कि दे डिड नॉट सर्वाइव द डिजास्टर, तो उनका काउंट्स आते जाएंगे। ठीक है जी, सबको क्लियर हो गया? सर ये उस केस पे होगा अगर हमारे पास इंडिविजुअली पता होगा कौन से क्लास कितने सरवाइव कर रहे हैं। ये आपके डेटा सेट से आएगा, याद रखिए। आपके पास ये जो मैं टेबल जनरेट करने लगा हूं, इट विल कम फ्रॉम योर डेटा सेट व्हिच इज गिवन। ठीक है। सो डेटा सेट में एक्सपेक्टेड क्या होगा मेरे पास, इसके लिए जो डेटा सेट होगा ऑफ कोर्स उसके अंदर आपके पास कम से कम और कुछ नहीं तो दो कॉलम जरूर होने चाहिए, एक क्लास और सर्वाइव। ठीक है, ये दो जरूर होने चाहिए इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट नो, फर्स्ट यस, सेकंड यस, सेकंड यस, थर्ड नो, एंड सो ऑन। समझ आ रही है जो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? क्रू नो, क्रू समझ आ रही है सर। नो। ठीक है। तो आपने इसमें से, अब इस केस में मैंने सिर्फ ये दो बताए, आपके पास इससे ज्यादा बड़ा डेटा सेट हो सकता है, और ज्यादा बड़ा डेटा सेट जो होगा उसके अंदर से आपने फिलहाल हम इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप की बात करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने अपने असाइनमेंट्स में भी किया था कि आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट है जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और उनमें से आप दो वेरिएबल्स पिक करके उनके दरमियान रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हो। तो इस केस में हमने क्लास और सर्वाइवल को चेक करने और उसके दरमियान रिलेशनशिप को कैलकुलेट करने। इज इट क्लियर? यस सर।
ओके गुड। सो अब मैं इसको अच्छा याद रखें कि ये जो मैं इस वक्त ये जो कंटिजेंसी टेबल जनरेट कर रहा हूँ, कंटिजेंसी टेबल कभी भी आप मैनुअली जनरेट नहीं करते। यू डू नॉट डू इट मैनुअली। ये इस वक्त आपको समझाने के लिए तो दिखाया जा रहा है, बट यू ऑलवेज डू इट यूजिंग सम काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल आर और मैटलैब और समथिंग एल्स, और मतलब पाइथन को कोई स्क्रिप्ट लिखोगे। सो इन दैट केस उसको आप डेटा दोगे, फ्रॉम देयर इट विल जनरेट इट फॉर यू। उसके लिए आपको याद होगा कि हम लोगों ने टेबल का एक कमांड थी जो हमने आर के अंदर देखी थी, जो कि आपका हर क्लास आपके एक वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज थी वो आपको रिपोर्ट करता था। याद है ना आपको? इसका मतलब उसी तरह के आपके पास एक कंटीजेंसी टेबल जनरेट करने के लिए भी आपके पास कोई कमांड होगी जो कि आपको कंटीजेंसी टेबल जनरेट करके दे देगी। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा बहरहाल जब मैं उसकी डेमो की तरफ जाऊंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग ये होपफुली सबको बात समझ आ गई। तो लेट मी फिल इट फॉर यू कि लेट से आपका जो सॉफ्टवेयर है उसने आपको ये कंटीजेंसी टेबल जो है रिपोर्ट कर दी है, और इसके अंदर ये वैल्यूज हैं जो कि आपकी डिफरेंट केसेस में आपके पास रिपोर्ट हुई है। सॉरी 673 673। सो दैट इज अ कंटीजेंसी टेबल आपके पास जो आ गया, जिसके अंदर आपके पास अभी डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। यहां तक किसी को समझ आ रही है? Yes, sir. अच्छा अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि वो जो मैंने क्वेश्चन आपको याद होगा कि मैंने पहले पूछा था, वो क्वेश्चन क्या था कि इज देयर एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्लास एंड व्हाट एंड द सर्वाइवल स्टेटस। सो उसको आंसर करने के लिए हम लोगों ने इस टेबल में से आंसर अपना गेट करना है, ठीक है। सो उसके लिए सबसे पहले आप यह करते हो कि इसके अंदर इसको ये आपको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज योर contingency table, दिस इज योर कंटीजेंसी टेबल जो कि आपने जनरेट किया फ्रॉम द डेटा सेट। होपफुली ये आपको फर्स्ट स्टेप याद होगा जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है, कि आपने कंटीजेंसी टेबल जनरेट करनी है। अच्छा, इसके बाद जो आपने इसको लेट मी कट इट फ्रॉम हियर, और मैं इसको यूज करता हूँ आगे भी। ओके, नाउ अच्छा, अब मेरे पास ये जो टेबल आया है, इस टेबल को फर्दर मैं एनालिसिस करने के लिए अब मैंने क्या करना था कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनकी रिलेशनशिप एक दूसरे के दरमियान कैलकुलेट करनी है, ठीक है। दैट इज द आंसर व्हिच वी वांट टू फाइंड आउट। सो उसके लिए क्या हम करेंगे? उसके लिए सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इनको हम कहते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस जो है हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब है कि आपने एक रो या एक कॉलम एडिशनल ऐड करना है इस टेबल के अंदर, और उसके अंदर यू हैव टू कैलकुलेट द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस? यानी कि आपने हर केस में, अब इस केस में जब आप टोटल की बात करते हो, यू आर टॉकिंग अबाउट द टोटल ऑफ द फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स, वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो इन दिस केस दैट विल बी 325 285 706 885। सिमिलरली अगर आप इन्हीं को ऐड करेंगे इन दिस डायरेक्शन, तो यू विल गेट अ टोटल ओवर हियर रो वाइज। इसको दैट विल बी 711 एंड 1490, और ये जो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2201, जो आप लोग पहले से मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज द टोटल काउंट ऑफ द पैसेंजर्स जो कि आपके पास अवेलेबल है। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके पास मिसिंग डेटा नहीं होगा, सो इन दैट केस दे विल ऑलवेज मैच। क्या मैच करेगा कि आपके पास जो सम यहां से आ रहा होगा और सम यहां से आ रहा होगा, दे विल ऑलवेज मैच ओवर हियर, सो दे विल हैव एग्जैक्टली द सेम काउंट ओवर हियर। ठीक है जी, ये सबको समझ आ गई। इनको हम कहते हैं इन इसको और इसको, ये मैंने लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो की बात करूं, दीज आर कॉल्ड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक हो गया?
ठीक है ना, ये सबको समझ आ गया? किसी किस्म का डाउट? सर ये मार्जिन रो हम ऐड क्यों कर रहे हैं? अब आगे बताता हूँ ना, क्योंकि ये आगे हमने यूज करनी है। याद रखें हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि हमारे पास जो अल्टीमेट एम है वो ये है कि हम लोग रिलेशनशिप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फ्रॉम इन क्लास एंड सर्वाइव के दरमियान। सो इफ देयर इज एनी और नॉट, दैट इज व्हाट वी हैव टू लुक इनटू। और उसके लिए आपने हमेशा जो कंपेयर करना है वो आपने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस को, और एक और चीज को करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। अगर आप इस केस में देखो तो अब क्वेश्चन हमारा वही है कि इज देयर एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स और नॉट। सो अब उसके लिए हमने क्या करना है कि अब आप टेबल परसेंटेजेस को चेक करोगे। क्यों? क्योंकि देखें अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि हम लोग चाहते हैं क्या है कि हमारे पास हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि 203 पैसेंजर्स ऑफ क्लास 1 हैज सर्वाइव्ड। तो ultimately what we want to do that how many people have survived, and they from which class they actually belong to. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, you have to calculate the row and column percentages। इसका मतलब क्या है? वेरी सिंपल। इस केस में आपने हर इसमें जो एंट्री है इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, कितने परसेंट सर्वाइव थे और वो क्लास 1 से बिलोंग करते थे। हाउ वी कैन डू दैट? मेरा ख्याल है दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड और कैलकुलेट। यस या नो? तो बता सकते हैं कैसे कैलकुलेट होंगे? टोटल के साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर। किसको टोटल के साथ डिवाइड करके? सर जो क्लास 1 में जो है 203 उसको टोटल के साथ डिवाइड करके। विच टोटल? इसमें टोटल तो बहुत सारे लिखे हुए हैं। जो सर एंड पे 711। एग्जैक्टली। सो इस केस में देखें जब आप इसकी परसेंटेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी इस तरह, सो इन दैट केस 203 डिवाइडेड बाय 711, 118 डिवाइडेड बाय 711, 178 डिवाइडेड बाय 711, 211 divided by 711. So in this case it will tell you that how many have survived and they belong percentage belong to class 1 2 3 4 5। इसका क्या मतलब है कि यू आर ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन कि कितने परसेंट जो सर्वाइवल थे वो क्लास 1 से बिलोंग करते थे, कितने परसेंट क्लास 2 से बिलोंग करते थे, क्लास 3 से, एंड क्रू मेंबर्स। सही है? यस या नो? यस सर। सो इन शॉर्ट अगर आप देखें तो अब आप हम वो जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, हम लोग कोशिश करें कि दो चीजों को कंबाइन करें। किसको? सर्वाइवल को, विच इज यस इन दिस केस, और परसेंटेज ऑफ क्लास मेंबर्स। ठीक हो गया? सो इस केस में आप क्या कह सकते हो, तो 203 डिवाइडेड बाय 711 जो भी परसेंटेज आती है, दैट मैनी सर्वाइव फ्रॉम क्लास 1, क्लास 2 3 4 एंड सो ऑन। सो इसका क्या मतलब है कि we are trying to intersect the characteristics of two different variables, which is yes and 1, yes and 2, yes and 3, yes and true। ट्रू समझ आ गई सबको? सर ये रो का केस आप बता रहे हैं? मैं दोनों को, अब मैं देखें मैं मिला के बात कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा। अब मैं कह रहा हूं कि हाउ मेनी ऑफ द सर्वाइवल belongs to class 1, so that will be 203 divided by 711। So let me write down the percentages over here। So maybe इधर ही लिख दूं सिर्फ समझाने के लिए। मैं परसेंटेज ये बनता है तकरीबन आपका 28.6%। ये मैं परसेंटेजेस हैं, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बनता है आपका 16.6%। और ये कैलकुलेट कैसे हुआ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में याद रहे कि हमने कैलकुलेट कैसे किया था, 711 से डिवाइड करके। ठीक हो गया? सो इसी तरह ये आपका 25% बनता है, ये आपका
8% बनता है। ओके, सो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि, और याद रखिए कि जब आप इन सब को ऐड करोगे तो ऑल टुगेदर यू विल गेट 100, सॉरी, ऑल टुगेदर ओके, ऑल टुगेदर यू विल गेट 100% ओवर हियर। ठीक है, वो आप इन सबको सम करोगे तो यू शुड गेट 100% ओवर हियर। ये सबको समझ आ रही है जी कि नहीं आ रही? यस यस ओके सर। ओके गुड। सो अगर अब आप देखो तो इस केस में हम इंटरसेक्शन की हमने बात की थी ना, स्कैटर प्लॉट में ए और बी दो डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज के दरमियान। तो हम इसमें अब क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी सर्वाइवल वर फ्रॉम द क्लास 1। सो इन दैट केस हम कहेंगे 28% सर्वाइवल वर फ्रॉम क्लास 1। ठीक है, हाउ मेनी वर फ्रॉम क्लास 2, तो हम कहेंगे 16% वर फ्रॉम क्लास 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक हो गया। तो इस केस में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ओके द परसेंटेज इज मे बी इंक्रीजिंग इस केस में फर्स्ट क्लास के लिए एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, अब नो के केस में हम डिस्कस करते हैं सिमिलरली। सो नो के केस भी एग्जैक्टली उसी तरह कैलकुलेट होगा। तो इस केस में आपके पास में इनकी सिर्फ वैल्यूज फिलहाल आपके लिए लिख रहा हूं। ये 8.2%, ये आपका 11.2%, और ये आपके पास आएगा कैसे? इस केस में मैं लिख देता हूं 122 डिवाइडेड बाय 1490। ठीक है, जो कि आपके पास ये वैल्यू है। इसके बाद 35.4% एंड लास्टली 45.2%। राइट, सो ये भी आपका अल्टीमेटली 100% हो जाना चाहिए जब आप इसको कैलकुलेट करोगे। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास इन दो वेरिएबल्स में से अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू, बल्कि एक और काम आप कर सकते हो कि आप इसी तरह जैसे आपने परसेंटेजेस कैलकुलेट की हैं, यही आप परसेंटेजेस जो हैं जब ऊपर से नीचे देखोगे, मतलब ये सर्वाइवल, मतलब ये मैंने कैसे देखी है, मैंने यस एंड नो के फॉर्म में देखी, यहां से देखी है ना। अगर आप देखा जाए यस एंड नो, अब ये यहाँ पे 100% है। अब इसी तरह अगर मैं यूं देखना शुरू कर दूं, मेरी बात समझ आ रही है, मतलब कि क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने लग जाऊं कि अगर क्लास 1 का मेंबर है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटेज और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ दैट पर्टिकुलर पैसेंजर। तो वो आपकी परसेंटेज कैसे आएगी कि मैं यस एंड नो की कैलकुलेट कर लूं, कैसे? तो 203 डिवाइडेड बाय 325 एंड 122 डिवाइडेड बाय 325, यही होगा ना? यस सर। ओके यस सर। ओके, तो इसका ये मतलब है कि आप जब रो वाइज जब कर रहे हो, सो रो वाइज का क्या मतलब है कि आपने यस एंड नो की हमने जब बात की, सो इन दैट केस वी आर टॉकिंग अबाउट in this case we are using the class as the variable, not variable, as the variable और मतलब इंटरेस्ट से मुराद इस केस में कि आपने ऑन द बेसिस ऑफ क्लास कैलकुलेट किया, जबकि कॉलम वाइज की हम जब बात करते हैं तो इस केस में आपने सर्वाइव को यूज, सर्वाइवेबिलिटी, सर्वाइव को यूज कर लिया इसी काम के लिए। ठीक है, सो होपफुली मेरी बात सबको समझ आ गई कि देखें अब ये डिपेंड करता है कि आपको ज्यादा इंपैक्ट किस चीज से पड़ता है। अगर आप ये कहते हैं कि क्लास 1 के मेंबर था, व्हाट इज द परसेंटेज और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अब आपको समझ आ गई। ऊपर से नीचे कैलकुलेट करोगे, यस नो को करोगे कि अगर मेरे पास 1 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये यस और नो की वैल्यूज परसेंटेजेस क्या है। और अगर आप कहते हो कि ओके आई हैव अ सर्वाइवल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही बिलोंग्स टू क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास एंड ग्रुप, सो इन दैट केस वो आप जो होगे वो इस तरह कैलकुलेट करोगे। ठीक है, यस आपके पास पहले आ जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। होपफुली मेरी बात सबको समझ आ गई। यस एंड नो जी? यस ओके, अगर मैं देखें, अगर सिर्फ समझाने के लिए मेरे पास टाइम है ना अभी?
अगर मैं वही यस एंड नो की बात करता हूँ, अब आपको पता है कि कॉलम नेम्स के हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड क्रू, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड क्रू। सो इस केस में अगर मैं ऊपर से, मतलब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं अब 62, मैं उसी टेबल की 62.5% एंड 37.5% कैलकुलेट कर रहा हूँ, सो इस केस में ओवरऑल इट विल बी 100%। ये वही है, अब आपका मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ वो इस तरह कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये अब आपकी क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ फॉर वन एंड फॉर द सर्वाइवल और नॉट सर्वाइवल के लिए। सो 58.6%, again it will be 100% over here. Then we have 25.2% over here. It is 74.8%. So that will turn out to be 100% again. And lastly 24.0% and 76.0%. It will be again 100%. So अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो अगर मैं ये चेक करूं कि ओके, इफ अ पर्सन is belonging to class 1 and what is the probability of his survival, that is quite high, that is around 62%, ठीक, and what is the probability of his not survival or his death is around 37%, ठीक है, which is a quite good thing. But if you look at the crew, the thing is kind of opposite, ठीक है, the probability of survival is quite low, which is 24%, and what is the probability of his death is 76%. So it is quite high. So from there you can understand that if down the line before the accident, if somebody asks you, okay, if I am a crew member and will I survive this disaster, and you will just ask him in which class do you belong to, he'll say I am a crew. So I'll say okay, so there is a probability quite high chance that you will not survive this disaster, ठीक है। So hopefully मेरा ख्याल है ये बात आप सबको समझ आ गई जो मैंने डिस्कशन की है। सर ये रो वाइज के लिए था ना? जी यस, अगर आप इसको इस तरह देख लें कि आप क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें कि अगर आपके पास यस हो तो इन दैट सॉरी अगर आपके पास सॉरी क्लास 1 हो तो इस केस में आपके पास ये यस एंड नो की डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, ठीक है। सो इस केस में आपने यस एंड नो जो आपने डिपेंड किया लिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर द क्लास आपके पास यस एंड नो, फॉर द क्लास यस एंड नो, फॉर द क्लास यस एंड नो, ठीक है। सो इस केस में आपने इस तरह इसको कैलकुलेट करना है। सो इस केस में रो और कॉलम परसेंटेजेस ये बोथ आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप उसमें से यूज कौन सा करोगे, वेल इट डिपेंड्स के आपको ज्यादा इम्पैक्ट किस को यूज करने से होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि यार मेरे पास क्लास का मेंबर है, उसकी सर्वाइवल यस एंड नो कितना होगा, तो यू विल गो विद दिस वन। पर अगर आप कहेंगे मेरे पास सर्वाइवल है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही विल बिलोंग टू क्लास 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन, तो आप जो है वो पहले वाला जो टेबल है उसको यूज करते हो उसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है जी। यस सर। यस सर। चलिए ये अच्छी बात होगी, आपको समझ आ गई। अच्छा, अब हम ये जो कुछ हमने कैलकुलेट किया इसको हम कहते हैं कि दीज आर आल्सो कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। ये सारी की सारी जो आपने रोज के अंदर कहा इनको कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज भी कहते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन इज मतलब होपफुली आप सबको याद होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। अगर आपको नहीं पता तो ये आपने जाके रिवाइज करना है, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका प्री रैक है जो आपने अंडरग्रेड केस में मोस्ट प्रॉब्ली पढ़ा होगा, और फिर उसका जो फॉर्म थी वो अगर आपको नहीं याद तो ये आपने अक्सर देखी होगी। याद है कुछ इस तरह की चीज, P A given B, the probability of A such that B has already occurred. Yes, so इसको ये कहते हैं probability of event A given event B, ठीक हो गया। So इसको हम कहते हैं conditional probability। अगर देखा जाए तो अगर आप थोड़ा सा इसको सोचो तो ये आप exactly conditional probabilities को ही डिस्कस कर रहे हो क्या।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अगर यहाँ से यूं बात करें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ अ क्लास 1 पर्सन, तो इसका क्या मतलब है कि गिवन क्या है, या बी जो है आपके पास क्या है, क्लास ए पैसेंजर, ये क्लास 1 पैसेंजर, ठीक है। सो क्लास 1 पैसेंजर, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्वाइवल इवेंट यस जनरेटेड इफ योर जो मेंबर है ही बिलोंग्स टू क्लास 1। तो इस केस में आपके पास इवेंट बी ए 1 हो गया, क्लास मेंबर टू द क्लास 1, and the probability of occurrence of yes, which is a in this case, you have to calculate, which is quite high in this case, which is around 62%. ठीक है जी, समझ आ गई सबको? So we are actually calculating the conditional probabilities over here. जी, yes or no? यस सर। अच्छा जी, आपको रो वाइज और कॉलम वाइज भी अब समझ आ गई। अब आगे हम चलते हैं कि अब आपने देखें, अब आपके पास कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस भी आ गई हैं और अब आपके पास मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस भी। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन वही रहेगी जो आपको पहले से आपने कैलकुलेट की हुई है, वो आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपने पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया था मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आपके पास जो कार्ड काउंट। अब आपने जब भी relationship between categorical variable, ये implicit है, is calculated always between the conditional distribution and marginal distribution, ठीक है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट दैट, वो आपको याद होगी कि वो कैसे कैलकुलेट होती है, वो कैसे वर्क करती हैं। ठीक है जी, सर एक दफा लाइन दोबारा रिपीट करें कि हमारा कैटेगोरिकल डेटा का रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना होगा। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, देखा जाए तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम कहते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज की डिस्ट्रीब्यूशन किस किस्म की है, ठीक है ना। इसमें कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन 62.15% एंड 37.5% ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप अक्रॉस और स्पेक्ट्रम जब देखते हो तो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन, सिमिलरली दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें दो क्लासेस हैं। अगर आपके पास 10, 12, 15 अगर और वैल्यूज होती तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली आपके पास इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अक्रॉस ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है ना। हम रो पर से ये नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सेकंड करो, जैसे इस केस में अगर आप देखो तो इस केस में आपके पास मल्टीपल वैल्यूज थी फॉर द क्लास, सो इस केस में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह आ गई 28, 16, 15 एंड 29। नाउ दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक हो गया ना। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है कि 1 के दरमियान 28 है, 2 पे 16 है, 3 पे 25 है एंड क्रू में 29 या ऑलमोस्ट 30 है। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस केस। जब आप इसकी बात करते हो तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन 62 एंड 37 क्योंकि आपके पास दो वैल्यू है, सही है। दोनों आप यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा यूज करते हो, बट बोथ आर कॉल्ड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस। सर कॉलम 1 इज कॉल्ड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस। दोनों देखें, मैं वही आपको दोनों आपको मैंने एग्जांपल बता दी कि इस केस में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह 62 एंड 37 हुई है, जबकि प्रीवियस केस के अंदर आपके पास 28, 16, 25 एंड 29 हुई थी, क्योंकि इस केस में आपके पास नंबर ऑफ वैल्यू ज्यादा थी जो कि आपके क्लास वेरिएबल के अंदर पॉसिबल वैल्यूज थी, ठीक ना। जब आप सर्वाइव्ड वेरिएबल को पिक करते हो तो यू हैव ओनली 2 वैल्यूज, तो इसका मतलब उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन ही होगी ना, यस एंड नो के दरमियान। तो उस केस में आपके पास दोनों आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ही हैं। तो सर इनमें से फिर बेस्ट कौन रहेगा? हाँ, अब मैं जो डिस्कस करने लगा हूं वो एग्जैक्टली ये डिस्कस करने लगा हूं कि जब भी आपने इस केस में डिस्कशन करनी है तो आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम जब स्कैटर प्लॉट न्यूमेरिकल वेरिएबल्स की बात की थी तो उसमें हमने एक आउटकम वेरिएबल डिस्कस किया था, याद है ना। एक वेरिएबल जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे हमारी आउटकम क्या होगा, कि आउट क्लास या आउटपुट क्लास हम जिसको कहते हैं, वो हमने डिस्कस की थी।
तो इस केस में we need to select outcome variable. So outcome variable जो होता है वो हर केस में ऑब्वियस नहीं होता. इस केस में इन दिस example survived seems to be an obvious वेरिएबल या आउटकम वेरिएबल. ठीक है, क्योंकि इस केस में मतलब इट सेंस बनाता है कि आपके पास पर्सन सर्वाइव हुआ या नहीं हुआ. सो दैट मेक्स मोर सेंस कि आपके पास इस केस में कम से कम आउटकम वेरिएबल आपके पास नजर आ गया. ठीक है, सो बट याद रखिए कि इन सम केसेस इट इज नॉट दैट ऑब्वियस. कुछ डेटाबेस डेटा सेट्स ऐसे जिसमें आपके आउटकम वेरिएबल इतना ज्यादा ऑब्वियस नहीं होता. तो इन दैट केस यू हैव टू लुक इनटू इट कि जिसका इंपैक्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा होगा. वो आप जब कोई डिफरेंट क्वेश्चंस और देखेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि इस केस में मैं इसको कौन सा पिक कर सकता हूं. मतलब देयर इज ऑलवेज कह सकते हैं कि there is a difference of opinion between different people. So but having said that, working point of view से there will remain the same. जो मैं अभी आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ वो चेंज नहीं होगी. ठीक है, सो अगर मैं इस केस में अब मेरे पास मैं फिर वापस उस टेबल को यूज करना चाहता हूं आगे प्रीवियस वन. लेट मी रीराइट इट ओवर हियर अगेन. इसको फिर से मैं लिख लेता हूं. ठीक है, सो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, क्रू, यस, नो, 62.5. ये मैं सिर्फ परसेंटेजेस 7 बार में परसेंटेज नहीं लिख रहा. होपफुली अब आप चलने लिख देता हूँ. 62.5%, 37.5%, इसके बाद 41.4%, देन 58.6%, 25.2%, 74.8%. ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हैं जो कि मैं हर सेल के कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ. ठीक है ना, वो आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया वो यही है. 76.0%. सो इस केस में ये आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हैं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई हैं, वो दोबारा से मैंने रिपोर्ट की है यहाँ पे. और इसके बाद अब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो वो आपकी यहाँ पे आएंगे. ठीक है, सो दिस विल बी योर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन. और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो इस केस में ये क्या मतलब है. इस केस में वी हैव सो दैट विल बी 32.3% and 67.7%. सो इस केस में आपके और यहाँ पे मैं 100% बार बार लिखता जाता हूँ. 100%, 100%, 100%, 100%. ठीक हो गया. सो अगर आप देखें तो इस केस में आप अगर ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में से इसकी बात करते हैं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बात करें और क्लास 1 की बात करें, सो दे डू नॉट मैच. अगर देखा जाए यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है एज कंपेयर टू दिस वन. सिमिलरली बाकी भी आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है. सो इसका ये मतलब है कि आपके पास जो जनरल जो डिस्ट्रीब्यूशन है दे मे नॉट बी सेम विद इन द क्लास. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास जो सर्वाइवेबिलिटी जो थी यस की और नो की वो अक्रॉस द क्लास एग्जैक्टली द सेम है. फॉर एग्जांपल इस केस में अगर आप देखा जाए तो सर्वाइवेबिलिटी इज ओनली 32%, बट आप विद इन द क्लास की बात करो तो इट इज 62% विद इन द क्लास 1. ठीक है, सिमिलरली अगर आप इस नो की बात करते हो तो क्लास 1 के अंदर सर्वाइवेबिलिटी इज 37%, बट ओवरऑल सर्वाइवेबिलिटी इज ओवरऑल नॉन सर्वाइवेबिलिटी इज 67%. तो इसका मतलब है कि आपके पास क्लास के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट मे नॉट बी सेम एज द
marginal distribution for the whole thing. So सर मार्जिनल कैसे कैलकुलेट किया है? सॉरी दोबारा बने, आपने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया? ये टोटल की बात हो रही है ना, अगर आपको याद हो सर ये ऐसे नहीं कैलकुलेट की कि 711 डिवाइडेड बाय 22 बाय 08. Yes, very good. Yes, 711 divided by 2201, क्योंकि that will give me the marginal distribution of the yes, कि कितने परसेंट जो है लोग जो है या उनकी प्रोबेबिलिटी क्या थी जो बच गए हैं, ठीक है, और जो मर गए हैं उनकी क्या होगी 1490 डिवाइडेड बाय 20. So clearly you can see that कि आपके पास सर्वाइव होने के चांसेस जो है वो काफी कम है एज कंपेयर टू आपके पास नॉट सर्वाइवल के, ठीक है ना, ये समझ आ गया? तो यही एग्जैक्टली आपका किधर यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो आपका ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन वो कहती है कि आपके पास सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो ओनली 32% हैं और जो नॉन सर्वाइवल के 67% क्वाइट हाई हैं. बट अगर आप इसको क्लास वाइज डिस्कस करते हैं तो दे आर नॉट द सेम. मतलब अगर यहाँ पे भी 32 और 67 होता तो इसका क्या मतलब है मतलब अगर आपके इंट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, अगर यहाँ पे भी मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे 32 आ जाता और नीचे यहाँ पे 67 आ जाता तो इसका क्या मतलब होता? इंट्यूशन जो आपको कहती है वो बताओ. जल्दी जल्दी. हाँ मतलब सर उनका क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन मैच कर रही है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन से, यही कह सकते हैं सर. एग्जैक्टली मैच कर रही है. और दूसरी चीज ये कि इसका क्या मतलब है कि एक चीज फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 32 है, यहाँ पे भी, मैं सिर्फ समझा, ये फिर भी बात है कि एक एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ क्या कि यहाँ पे 32 आपने लिखा, यहाँ पे 67 डिस्ट्रीब्यूशन बताई, तो यहाँ पे भी 32 और 67 आ जाए, यहाँ पे भी 32 67 आ जाए, 32 67 32 67. समझ आ गई सबको? अगर ये आ जाए तो इसका क्या मतलब है तो मुझे अब बता सकता है अगर मैं थोड़ी सी और ज्यादा मतलब लिबर्टी ले लूं इसको चेंज करने में. जी कमेंट करो इसके ऊपर और इसी से हमारा सारा जो मामला हल हो जाएगा. जी जी जल्दी जल्दी. सर आपने आस्क क्या पूछा हमसे? मैंने पूछा कि अगर आपका ये 32.67 सॉरी 32.3 और 67.7 यही वैल्यूज अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की हर एक की यही वैल्यूज हों क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 तो इसका क्या मतलब है? सर ऑल क्लासेस हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल एंड नॉन सर्वाइवल. ये तो ऑब्वियस है ना, मतलब इसका ये तो आपने वो फैक्ट जो मैंने बताया उसको आपने बस नरेट कर दिया. इससे थोड़ा सा आगे इसको एक्सट्रैपोलेट करो कि इसका मतलब फ्रॉम क्या कहेंगे फ्रॉम द प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसका क्या मतलब है? सर सवाल की समझ नहीं आई मुझे. मैं आपको ये पता चल गया कि मैंने क्या कहा कि आपने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस के इक्वल हो गई हैं सारी. सही है? यस. तो इस केस में मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब फ्रॉम द प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल हर केस में अगर 32 और 67 32 67 32 32 67 32 67 32 67 32 67 मिल रही हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके केस में जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास ओवरऑल यस नो की आपने जो बात की है वो आपका क्लास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट क्लास क्या डिस्ट्रीब्यूशन आपकी जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस है वो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ मैच कर रही हैं. तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि क्लास का इंपैक्ट ऑन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज नल या वेरी लेस. एग्रीड? ये बात सर दोबारा रिपीट कीजिएगा. इन शॉर्ट हम क्या कह रहे हैं कि अगर P ऑफ A की बात करते हैं, P ऑफ A प्रोवाइडेड B इज इक्वल्स टू P ऑफ A. इसका क्या मतलब है? इफ
I call marginal distribution that it is probable marginal distribution at P of A. इस केस में अगर आपके पास 32.3 है जैसे, और मैं कहता हूं कि B is your event that a person belongs to a certain class, अगर वो क्लास 1 से बिलोंग करता है PAB is equals to 32, क्लास 2 से बिलोंग करता है PAB is 32, क्लास 3 से बिलोंग करता है PA, मतलब इसमें इन शॉर्ट ये कहना चाहिए PA1 is equals to PA2 is equals to PA3 is equals to PA3 is equals to 32. वो जब 32 तो नहीं कहना चाहिए, प्रोबेबिलिटी है, तो इस केस में इट हैज टू बी 0.32. तो इसका क्या मतलब है? ये पहली लाइन, ये लाइन और ये लाइन एक ही चीज है जी. अगर ये हो तो इसका क्या मतलब है? जल्दी बोलो यार. इट इज क्वाइट ऑब्वियस. सर मुझे बस समझ बेसिकली ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इज 32.3%, बट फ्रॉम द 32.3% class A has the highest probability of from that survival. नहीं, इस तरह की तो कोई चीज मैंने नहीं लिखी इसमें. इसमें तो मैंने लिखा है कि A रिप्रेजेंट करता है कि बल्कि A को भी मैं अगर रिप्लेस कर दूं इससे yes से, all these A are yes, yes, yes and yes. जी अब बताओ. सर ये कह रहा है कि when it comes to marginal distribution, the class distribution does not matter. Exactly, yes, that is the right answer. कि for example अगर आपके पास देखा जाए, yes is the common factor along all the values, all the probabilities. इसका क्या मतलब है कि क्लास इस अगर मैं इसकी बात करूं कि a person survives, what is the probability of survival of a person if he belongs to class 1? That is this one. What is the probability of the person if he belongs to class 2? What is the probability of the survival of a person if he belongs to class 3 and class group? So all these turns out to be same, that is equal. So इसका क्या मतलब है? Irrespective of the class, the person, all these people have the same percentage or chance of survival. Hopefully मेरी बात सबको समझ आ गई. But it is not the case over here. अगर आप देखो तो आपको नजर आ रहा है कि probability of survival is only 32%, but probability of survival if a person belongs to class 1 is 62%. Hopefully मेरी बात समझ आ रही है. तो इसका मतलब है कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द क्लासेस है वो डिफरेंट है, और आपको नजर आ रहा है कि जो आप क्लास 1 से क्रू की तरफ मूव कर रहे हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्वाइवल चांस जो है वो रिड्यूस हो रही है. सो क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि आपके केस के अंदर प्रोबेबिलिटी ये दोनों मैच नहीं कर रही, और इफ दिस इज द केस देन देयर इज no is very important, no relationship between the two variables. ये बात सबको समझ आ गई? क्यों? क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि अगर आप उस क्लास की वैल्यू को उसको चेंज भी कर रहे हैं तो आपका ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल प्रोबेबिलिटी पे कोई पॉजिटिव ये मतलब वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चेंज नहीं आ रही. ये बिल्कुल वैसे ही है अगर आप स्कैटर प्लॉट की बात करते थे तो आप कहते हो कि आप x को चेंज कर रहे हो लेट्स से, और y के ऊपर कोई चेंज नहीं आती, तो इसका क्या मतलब है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को चेंज भी करते रहोगे, y के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं है. इन शॉर्ट इसका ये मतलब है ना. यस या नो? ये बिल्कुल ऐसे ही अगर इसको मैं 3 कहता हूं तो ये इक्वेशन बन गई y = 3, यानी कि इवन x is not part of the equation, यानी कि x आपके इक्वेशन के अंदर है भी नहीं. इन शॉर्ट ये देखा जाए तो इसका मतलब है आप जो मर्जी करते रहो आपके y पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इट विल रिमेन द सेम. इसका मतलब है ओवरऑल आपका x का कोई रोल नहीं है y को चेंज करने में. सेम इज द केस ओवर हियर.
जी सर मतलब आपकी समझ भी आ रही है, मेरे साथ में समझ नहीं भी आ रही। जी आप कह रहे हैं कि the classes of a person on Titanic has no effect on the survivability. ये 32.8%। पर उसके साथ मैंने एक कंडीशन रखी है, आप जो बात कह रहे हो वो ये लिखी है, अगर ये वाली कंडीशन जो मैंने लिखी ये ट्रू हो जाए तो, ठीक है, अगर ये ट्रू हो जाए, जो कि इस केस में ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके केस में PS1 इज नॉट इज इक्वल टू PS2, ऐसे ही है, ये नहीं है ना, ये PS1 है और ये PS2 है, सो दे आर नॉट इक्वल, क्लियरली यू कैन सी दैट। तो इस टाइटैनिक के केस में probability of yes dash such that one person belongs to class 1 is Yes. not equal to marginal distribution, therefore class has an effect on the marginal distribution. या आपने इस केस में A एंड B का मतलब ये होता है कि आपने A, आपका इवेंट की बात हो रही है ना, ये सारी इवेंट्स को आप देखोगे, तो इस केस में यस इसका मतलब ये है कि अगर ये सारे इक्वल नहीं है, जो कि आप क्लियरली इक्वल नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि क्लास इज डेफिनेटली हैज सम इंपैक्ट ऑन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द पीपल। यस, ये मैंने भी ये एग्जांपल दी है कि अगर मैं क्लास चेंज कर रहा हूं, अगर मेरी सर्वाइवेबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसका क्या मतलब है कि देयर इज नथिंग, देयर इज नो रोल ऑफ द क्लास इन द सर्वाइवेबिलिटी। ठीक हो गया? बट आप जो ही x को चेंज करते हो और y में चेंज आ रही है, इसका क्या मतलब, वो क्लियरली नजर आ रहा है। x का मतलब क्लास चेंज कर रहे हो तो उसकी सर्वाइवेबिलिटी के चांसेस आपको चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। जब वो चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द क्लास एंड द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ अ पैसेंजर। अब समझ आ गई सर। Exactly. So this is exactly what we want to find out. देखिए हमारे स्टार्ट हमने क्या कहा था कि हम लोगों ने सबसे पहले कोशिश, सॉरी मैं यहाँ पे ऐड ही कर देता हूँ उसको। So all we have to do is, सबसे पहले हम लोगों ने, सॉरी ऑल टुगेदर, अब इसका जो तरीकाकार होगा वो क्या होगा कि you have to find out the variable of interest, जिसको हम आउटकम वेरिएबल भी कहेंगे, ठीक है ना, आउटकम जो आप जिसको आप सेट करते हो। ठीक हो गया? देन यू और ये आपने कंटिजेंसी टेबल से कैलकुलेट करना जो आप पहले से जनरेट करें, कंटिजेंसी टेबल से आपने कैलकुलेट किया। इसके बाद आपने क्या किया, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, बल्कि कंडीशनल से भी पहले आप लिखें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट की। कैसे? हमने अभी जो एग्जांपल ली थी उसमें सर्वाइवेबिलिटी की बात की थी, और सर्वाइवेबिलिटी की आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी 32 एंड 67। ठीक है, वो आपको याद होगा, ये यस था और ये नो था। 67 है इस परसेंटेज। ठीक हो गया ना, ये समझ आ रही है सबको? इसके बाद आपने कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस कैलकुलेट की, डिस्ट्रीब्यूशंस जो कि अब आपका यहां वाला टेबल फिल होगा, क्लास 1, क्लास 2, क्रू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक हो गया? ये भी समझ आ गई सबको? यहां से आपका ये पूरा अब आपका टेबल क्रिएट हो गया, और जब ये आपका कैलकुलेट हो जाता है, देन यू हैव टू फाइंड आउट PAB, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एंड इसको कंपेयर करना है विद योर PA। इफ दे आर इक्वल, then you have to say that there is no relationship between A and B, यानी कि क्लास और सर्वाइवेबिलिटी के दरमियान कोई रिलेशन नहीं। इफ दिस इज नॉट द केस, अगर इसके दरमियान आपके पास अदरवाइज there is a relationship between the two categorical, जो मैं शुरू से कहना, categorical variables। ठीक है जी, आर वी क्लियर ऑन दैट? यस सर। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि do you really think that is there any relationship between class level and the survival
on the Titanic ship. So what will be your answer? There is a relationship. Yes, good. So वो हमने जो क्वेश्चन पहले पोस्ट किया था सबसे पहले, तो उसका आंसर यस है, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा सेट जो आपको अभी तक गिवन है उसकी बेसिस के ऊपर। होपफुली मेरी बात आपको समझ आ गई। और इसको आप थोड़ा सा और फर्दर अगर थोड़ा सा एसेस करते हो और चेक करते हो, तो जो मैंने आपको पहले बताया था, आप इसके फर्दर आप एक और ना सिर्फ ये बताओगे बल्कि एक और चीज ये बता रहे होगे कि ना सिर्फ सर्वाइवबिलिटी जो है वो एक दूसरे के डिपेंडेंट, सॉरी, there is an effect, there is a relationship between the class and the survivability, but not only that, हमें ये नजर आ रहा है कि आपके पास जो क्लास 1 के पैसेंजर्स हैं उनकी सर्वाइवेबिलिटी जो है वो हायर है एज कंपेयर टू द लोअर क्लास मेंबर्स, जो ये क्लास क्रू हो गए या थर्ड क्लास के। सो दिस इज द पैटर्न विच वी कैन सी। और उसके लिए मैं आपको सबसे पहले याद होगा कि मैंने आपको जो फर्स्ट ये बनाया था, वो उसका रीजन ये है कि अगर आपका नीचे डेक पे कहीं पे हिट हुआ है तो ये लोग सबसे ज्यादा रिस्क पे थे, ये कम थे, तो दे हैव टाइम टू सर्वाइव एज कंपेयर टू दीज पीपल। सो दैट इज व्हाई ऊपर से नीचे आप जो मूव करते हो तो आपकी चांस ऑफ सर्वाइवेबिलिटी रिड्यूस होती जाती है। ठीक है जी, ये सबको समझ आ गया जी? यस सर, समझ आ गई। यस ओके, मेरा ख्याल है आज के लिए हमारे पास शायद इतनी टाइम है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बाकी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज क्लास में ख्याल वी आर डन विद टुडेस क्लास, ठीक है? अदरवाइज यू अनलेस यू हैव सम काइंड ऑफ क्वेश्चन। सर एक सवाल ये कि जो रिलेशनशिप है जी, वो हम आगे मजीद ये आगे जाके पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप इनके दरमियान स्ट्रॉन्गर है, वीकर है, या कोई रिलेशनशिप नहीं है? जी वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि कोई रिलेशनशिप मैंने आपको बता दी है या नहीं है, वो आपको बता दी है, ठीक है? उसका क्लियर चेक वो मैंने आपको बता दिया कि पीएबी के कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। तो इस केस में आपको पता चल जाएगा यस या नो। तो अगर आपके पास है या नहीं है वो आप चेक कर सकते हैं। ओके सर, ठीक हो गया? सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये काइंड ऑफ लाइक नैप बायस एल्गोरिथम टाइप लग रहा है मुझे। Exactly. आपकी कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो होती है वो आपका नाइफ बेस जो होता है वो आपकी कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे ही चल रहा होता है। अगर आप उसका फार्मूला चेक करेंगे उसमें कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है जो कि ये ही है। ओके सर, थैंक यू। इवन आप आगे जाके मैं आपको एक आध और एग्जांपल जो करवाऊंगा तो वो है डिसीजन ट्रीज। जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो भी उनको समझ आ जाएगी कि क्या कि आपका एक ब्रांच है वो कैसे मतलब कैसे इफेक्ट करती है कंडीशन प्रोबेबिलिटी को, वो भी मैं आपको एग्जांपल जब दूंगा तो वो भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें जी, आज के लिए जी फिर इतना ही करते हैं। सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द नेक्स्ट जो होगा वो आपका 12 लोग थे। ठीक है, चलें, अच्छा होगा जी। एक्सक्यूज मी सर काइंडली ये रिकॉर्डिंग प्लीज प्रोवाइड कर दीजिएगा। मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, मैं पहले मेरे पास ही आएगी तो मैं कर दूंगा।